अलग अलग वर्क ही चल रहे हैं उन्होंने कलैक्टिवली करके है जा रहे हैं। तीसरा है ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਜਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ 80 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ 70 ਦੀ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 13 ਸਾਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ 10,000 ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਉਨ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ एक जितने भी लोगों ने मोर्चे खोल रखे हैं चाहे वो टीचर्स है या एनवायरमेंटलिस्ट है या किसान भाई हैं उन सब नू एक आमंत्रण है कि एक बहुत वड्डा मौका है पहली बार 13 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਬਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟਡ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਔਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੀਟ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੇਮ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਮੈਂ ਔਰ ਇੱਕ ਧਰੁਵ ਅਰੋੜਾ ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਰਚਦੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੌਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਯਾਨੀ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਧੋਖੇ ਖਾਏ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10,000 ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜਾਏ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਬੰਦਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਖਿੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਖਿੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਟੀਚਰਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ NGOs ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ NGO ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਹਿਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ
और पॉलिटिकल आवाज़ भी तब्दील करने वास्ते तुहानू पीपल्स मूवमेंट बनाना पेगा, जन अंदोलन जिहदी गल हो रही है। सड़क ते उतरो, सारे एक दूजे को सपोर्ट करो, एक नैरेटिव बनाओ, तां ही तुहाडी आवाज़ सुनी जाएगी। और यही रोश जिहड़ा तुसीं उन्हें सारे साथियों को सुनिया, यही उन्हां दे अंदर दी भावना जिहड़ी बाहर आ रही है। साडा खिरदा पंजाब एक अपील करेगा सारे फार्मर्स नू, टीचर्स नू, एनवायरमेंटलिस्ट नू जिहड़े अपने तौर पर काम कर रहे हैं, एक यूनाइटेड अंबरेला के अंदर आन, अंदोलन में सारे सिविक सोसाइटीज़ एक दूजे ने सपोर्ट करन, एक पॉलिटिकल नवा नैरेटिव बनान। भारत गठबंधन की मंशा भी यही है, असी कोई एक पार्टी लैके अगे नहीं आए। किसी एक पार्टी को कोई तुसी सपोर्ट करोगे फिर गल वही हो जाएगी कौन लीड कर रहा है, कौन इसका मुख बन रहा है। भारत गठबंधन 80 पार्टियां का एक कॉम्बीनेशन है, एक अलायंस है, पॉलिटिकल अलायंस है। सारिਆਂ ਨੂੰ अपील है पॉलिटिकल लैंगुएज विच गलबात करो, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाओ, तां ही तुसी अगे बढ़ोगे। इसी का इजाद अज जन अंदोलन नाल होई है। और साडी अपील सारे पंजाब नू यह भी हैगी कि तुसी पंजाब की हालत देखो, सिर्फ सोचो नहीं, एक्टिविस्ट की तरह ना सोचो, पॉलिटिकली सोचो। थैंक यू। नमस्कार जी, मैं आए हुए मीडिया नू वेलकम करना। सर मैं अपने बारे थोड़ा जिहा तुहानूं एक्सप्लेन कर दस देवां। मैं AK शर्मा 35 साल मैं गौरमेंट ऑफ इंडिया नू सर्व किया। उस तो बाद मैं अपनी रिटायरमेंट तो बाद कुछ लोगों ने मिल के अपनी एयरलाइन खोली जिसका नाम जूम एयरलाइन है, और एक AME कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रेस्टिजियस बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी। यह चलता रहा। मैं चलाने काफ़ी तकलीफा आईयां, विच काफ़ी प्रॉब्लम्स आईयां, और जिहड़ा मेरा बिजनेस सी वो हौली हौली बंद दे उदे ही आ गया। उसका कारण यह सी कि मैनू गौरमेंट का सपोर्ट नहीं मिलती सी। तो AME कॉलेज तो मेरा 2018 बंद हो गया सी, और एयरलाइन मेरी पिछे बंद हुई है। तो मैं फिर एयरलाइन बाद सेल भी कर दिता। मैनू काफ़ी लॉस होया ये। उसका कारण है कि साड़ी गौरमेंट है ना, भावें आप पार्टी होए भावें BJP होए, गौरमेंट का पूरा सपोर्ट नहीं रहा मैनू। तो मैं सोचा क्यों ना मैं राजनीति जावां, तो उस करके मैं राजनीति उतरिया। मैं देखा क्यों ना मैं देखा कि ये चीज़ां क्यों, करप्शन क्यों हो रही है। कोई भी असी काम कराने सानू पैसे देने पैंदे ने। तो मैं इस करके मैं क्या राजनीति उतरना। तो मैं अन्ना दे अंदोलन 2011 मैं देखा चलो केजरीवाल जी ने बड़ा अच्छा स्टैप लिया, जी करप्शन है वो बंद करेंगे। तो मैं आया तो देखा 2-4 साल तो चलो थोड़ा बहुत ठीक चलिया। उस तो बाद लोग जड़े असली बंदे सी, ईमानदार जड़े अंदोलनी जड़े सी, वो जाने शुरू हो गए, या उन्होंने कट दिता या वो चले गए। बाकी रह गए जेबां भरन वाले। हुण तुसीं देखो दिल्ली च करप्शन इन्नी हो गई है, और मनी लॉन्ड्रिंग ले लो, करप्शन ले लो, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड ले लो, कोई भी काम नहीं हो रहा। और जो काम है जनता जो काम करना सी वो सारा रुक गया दिल्ली जी। और दिल्ली की जनता इस टाइम इन्नी परेशान है, टुटियां सड़कां, पानी पीने को नहीं मिलता। कई इलाकों में पानी आता नहीं, और कितने आता उत्थे साफ पानी नहीं आता। पोल्यूशन बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है। ये इस इधर ध्यान ना दे के दूजी गल्लां ही लागे ने, और इन्ने घोटाले करते, शराब घोटाला, फलाना घोटाला, और सारे मंत्री अद्धे तो ज़्यादा जेल ही चले गए। इन्होंने जोड़े मेन सी जोड़े मंत्री वो जेल ही चले गए। उसका कारण यह सी कि इन्हों का जो काम करता तो है ही नहीं सी, काम तो इन्होंने किया ही कोई। लोगों को जेल भेजना शुरू कर दिया, लोग करप्शन शुरू हुई तो जेल जाने शुरू हो गए। साडा कहने का मतलब है कि इन्होंने दूजा रास्ता अपनाया फ्री बीज का। फ्री बीज कह रहे जी 2100 रुपये देंगे लेडीज़ नूं। तुसीं तुहाडा बजट अलाउ करदा कि 2100 रुपये हर लेडी नूं देना? दे कैनोट गिव। इन्ना बजट ही नहीं है 2100 रुपये देने का। 18,000 रुपये मौलवियां नूं तुसीं दे नहीं रहे, और फिर ब्राह्मणों नूं दे रहे हो, पुजारियों नूं दे रहे हो 18,000 रुपये का वादा कर रहे हो। व्हाट इज़ दिस? लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो ना। पैसे किसी नूं देना नहीं, इलैक्शन तुसीं वोटां तुसीं चाहते हो वोटां मिलन, वो नहीं मिलनियां तुहानूं वोटां, क्योंकि तुसीं लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। ना उन्होंने 2100 रुपये मिलना, ना पुजारियों नूं या मौलवियों नूं 18,000 मिलना, कुछ नहीं मिलना। लोगों को वोट लैन कर बेवकूफ़ बनाने की वाली गल होगी। CAG जी रिपोर्ट है उन्होंने डिकलेयर नहीं कर रहे,
ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਏਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਟਾਵਰ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਵਰ 22 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਏਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਵਰ ਲਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। यानी 88 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का। और इन्हों की जी प्लानिंग है, इनएडुकेट प्लानिंग है इन्हों की, कोई इन्हों का सिस्टम नहीं है। एफओ जी गवर्नमेंट का की फायदा जी जनता को बेवकूफ़ बना के फ्री बीज दे के उन्होंने बेवकूफ़ बनाए। मैं इन्ना ही कहना चाहना कि यह चीज़ा पंजाब ही ना हो। चलो दिल्ली से चलो ठीक है, दिल्ली चल रहा है, दिल्ली लोग जो भी है हूँ आने वाले टाइम ही शायद इस बारी केजरीवाल नहीं आएगा, मन लगता है। बट मैं चाहना कि पंजाब के लोग जड़े इस चीज़ समझन कि केजरीवाल जी दिल्ली किस तरह जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी सर। अमृतसर के आदरणीय पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत। मैं बलदेव राजपूत हूँ हिमाचल से और मैं एक पार्टी को प्रेजेंट करता हूँ, स्वाभिमान पार्टी। देखिए अभी जो सब लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, अपने इस वातावरण में 4 प्रकार की सत्ताएं हैं। एक है धर्म सत्ता, दूसरा है समाज सत्ता, तीसरा है राज सत्ता और चौथा है अर्थ सत्ता। ये 4 सत्ताएं जो हैं वो क्रियाशील हैं, परंतु वर्तमान में राज सत्ता ने सभी सत्ताओं को अपने कंट्रोल में ले लिया है। वास्तव में धर्म सत्ता सर्वोपरि चाहिए, दूसरे स्थान पर समाज सत्ता चाहिए, तीसरे स्थान पर राज सत्ता। राज सत्ता जो है धर्म सत्ता और समाज सत्ता के अनुकूल चलती है तो देश का समाज का विकास भी होगा, भला भी होगा। वर्तमान में ये हो रहा है कि राज सत्ता सब पर हावी है और सारी सत्ताओं का दुरुपयोग हो रहा है। तो हमने ये तय किया है कि राज सत्ता पर धर्म सत्ता और समाज सत्ता का अंकुश हो, तब जाकर के राज सत्ता जो है वो ठीक से चलेगी। जैसे मैं राम राज्य की बात करता हूँ तो राम के समय में वशिष्ठ मुनि होते थे धर्म सत्ता, और दशरथ ने भी और राम ने भी वशिष्ठ मुनि के निर्देश के अनुसार अपना काम चलाया, सारा राज का चलाया। इसका अर्थ इसी कारण से कहा कि राम के राज्य में राम राज कहूँ न व्यापार, मतलब ना रोगी होता था, ना व्यक्ति मरता था, मतलब बचपन में नहीं मरता था, अकाल मृत्यु नहीं होती थी और सब लोग सुखी थे, कोई रोगी नहीं था। इस कारण से था कि धर्म सत्ता सर्वोपरि थी। वर्तमान में जो व्यवस्था बिगड़ गई है, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। हमने तय किया है कि अब जो पार्टियां लाइक माइंडेड हैं, देश और समाज का भला चाहती हैं, उन पार्टियों को इकट्ठा किया जाए और उसको हम इकट्ठा करने का हम प्रयास किया हमने। तो जैसे कहा गया 80 से ज़्यादा पार्टियां हमारे साथ जुड़ गई हैं। भाई जो दिल्ली का इलेक्शन है, क्योंकि दिल्ली जो है वो देश का दिल है ना, तो दिल्ली से अगर कोई शुरुआत होती है तो सारे देश में फैल जाएगी। तो हमने तय किया है कि 70 कंस्टिट्यूंसी में ठीक अच्छे ईमानदार देशभक्त निष्ठावान नेता जो है वो चुने जाएंगे, तब जाकर के सारे देश को एक संदेश जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने दिल्ली को पकड़ा है। दिल्ली में 70 कंस्टिट्यूंसियों में अपने उम्मीदवार हम खड़ा करेंगे, क्योंकि पंजाब की भूमिका जो दिल्ली में ज़्यादा है। जैसे कहा गया दिल्ली पंजाबी और सिख जो है वो दिल्ली में अधिक संख्या में हैं। अगर पंजाब का हमें सपोर्ट मिल जाता है तो हम दिल्ली को फतेह कर सकते हैं। तो मैं ये पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूँगा कि हमने तय किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, विष मुक्त खेती, नशा मुक्त व्यक्ति, ये 3 हमारे स्लोगन है। वर्तमान में अपने युवाओं को राजनेताओं ने नशे में धुत कर दिया। इस कारण से जिस देश का युवा जो है नशा युक्त हो जाएगा, उस देश का क्या कल्याण होगा। अपने इस देश की आबादी का 45 करोड़ जो युवा हैं और अमेरिका की आबादी 38 करोड़ है। अगर देश का युवा ठीक से ठीक मतलब खड़ा हो जाए और उसका विचार, उसका क्रिया, उसके चिंतन ठीक हो जाए तो हम सारे विश्व में राज कर सकते हैं। तो इसलिए ये नशा जो है, नशे की शुरुआत जो है वो राजनेता करते हैं। पंजाब से हिमाचल में भी नशा जाता है, दिल्ली में भी जाता है, हर जगह नशा जाता है। तो ये नशे के जो व्यापारी हैं, इनको ठीक करना ये समाज का दायित्व बन जाता है।
और ये समाज ठीक लोगों को आगे भेजेगा तो मुझे लगता है कि सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि आप पत्रकार बंधु जो है अपने समाज का एक चेहरा है, समाज को सही और गलत दिशा जो है वो देते हैं, तो आप अपना दायित्व ठीक से निभाइए। ये चौथा स्तंभ है अपने इस लोकतंत्र का, तो चौथा स्तंभ अपने दायित्व को निभा देगा तो राजसत्ता भी ठीक हो जाएगी और सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। हाँ जी सर। आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है भारत गठबंधन की तरफ से। मैं अपने बारे में 2 लाइन बता दूं आपको। मैं मेरठ से रिटायर हुआ हूं, उत्तर प्रदेश सरकार में हेल्थ सर्विसेज में था मैं, PMHS कहलाती है वो, और 2019 में रिटायर हुआ। उसके बाद समग्र विकास पार्टी के अध्यक्ष का पद लिया और मार्च 2022 से 3000 पार्टियों को, सभी बड़ी छोटी सभी पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो सके, उनको हमने एक पत्र भेजा, क्योंकि उसका मजमून भी बता दूं मैं, मुख्य था वो कि कॉरपोरेटोक्रेसी पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है उसने। अमेरिका ले लो या कोई भी देश ले लें आप, कॉरपोरेट्स जो है उनके हज़ारों करोड़ के लोन माफ़ होते हैं और एक छोटे किसान का, व्यापारी का 10-20 हज़ार 30 हज़ार के लोन में भी उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। आज उसी कॉरपोरेट्स की वजह से सबसे बड़ा देश जो है अमेरिका कहलाता, लाखों लोग फुटपाथ पे हैं, ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप पत्रकार हैं, छोलदारियों में रह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ झोंपड़ियाँ डाल के लोग रहते हैं, जबकि स्कैंडिनेवियन कंट्री में आपको कहीं एक भी इस तरह का टेंट नहीं मिलेगा। तो ये सब एनालाइज़ किया, पढ़ता रहा और देखता रहा। पहले से पॉलिटिक्स में रहा, कभी नौकरी से पहले भी, पर सारी पॉलिटिक्स मैंने अभी तक जो देखी, भ्रष्टाचार, झूठ, हिंसा और नफ़रत की राजनीति रही है। अब चरम पे है वो अपने, और इसमें जो जैसा भी मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा, केजरीवाल और बीजेपी ये 2 तो बहुत ही ख़राब हैं, पर इनकी जड़ कांग्रेस है। कॉरपोरेटोक्रेसी की भी जड़ कांग्रेस ही है। 91 में नरसिम्हा राव सरकार ने कॉरपोरेट्स को ऊपर लाना शुरू किया और जो आम जनता है उसको नीचे लाना शुरू किया। वो कैसे कि इन्होंने कॉरपोरेट्स के हज़ारों करोड़ के लोन माफ़ करने शुरू किए। और आपको ध्यान होगा कि बैंकों को बाउंसर रखने की इजाज़त मिली जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो उसमें बाउंसर्स अपमान करते थे। 30,000 का आपने लोन लिया, आप किसान हैं, आपने ट्रैक्टर का 30,000 का लोन नहीं दे पाए, तो बाउंसर आपकी बेइज्जती करते थे और आप आत्महत्या कर लेते थे। लातूर इसका बहुत बड़ा गवाह है। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि लातूर में हज़ारों किसान सालाना आत्महत्या करने लगे। और छोटे व्यापारी, गांव में किसी ने अपने व्यापार के लिए 50,000 का लोन लिया और 20,000 अगर वापस नहीं कर पाया तो बाउंसर उसकी बेइज्जती करते थे और वो आत्महत्या कर लेते थे। तो बहरहाल ये सब कारण है, उसके पीछे कॉरपोरेटोक्रेसी कारण है। और कॉरपोरेटोक्रेसी या कॉरपोरेट तंत्र, उसी की वजह से आप सारे देश की स्थिति देख रहे होंगे कि अडानी अंबानी सिर्फ उन्हीं के पास पैसा है और आपके ये जितने भी व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो सब त्रस्त हैं कुछ को छोड़ के। तो मैं लौट के आता हूँ, ये जो हमने गठबंधन बनाया इसलिए था कि झूठ, लूट, नफ़रत और भ्रष्टाचार की राजनीति वो चरम पे जा रही थी। जैसा भी आपने बताया कि जन आंदोलन चलाया इन लोगों ने, आप लोगों ने, और उसके बाद हुआ क्या, केजरीवाल सत्ता में आए और उसके बाद करप्शन शुरू हो गया और भयंकर करप्शन है। इतनी टूटी हुई सड़कें, आपके पंजाब में भी बहुत टूटी हुई सड़कें हैं, पहले कभी नहीं थी। चंडीगढ़ मेरा काफ़ी आना जाना रहा है, आज भी चंडीगढ़ की सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी होती थी, कहीं गड्ढे नहीं मिलते थे मुझे। और मैंने देखा अभी 2-3 दिन पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, तो उसमें जो गाड़ी जो है गड्ढों में जा रही थी, है ना, बम सब लोगों को लग रहे थे। और यहाँ अभी आए हम, इतना साफ, मैं कभी यहाँ नहीं आया हूँ पहले, पर लोगों से बातचीत की तो गंदगी और ये सड़कें टूटी होना, ख़राब पानी, ये भी पंजाब में शुरू हो गया। और ऐसे ही पूरे भारत का कोई बर्बादी मोदी सरकार कर रही है। आप लोगों से बेहतर मैं नहीं जानता, क्योंकि आप लोगों का रात दिन का यही काम है, आप सूचना लेके जनता तक पहुंचाना।
तो मैं फिर से आता हूँ लौट के, क्यों गठबंधन बनाया हमने, इसकी कुछ आपको तो मैंने इसकी वो बता दी, क्या नाम, जो नींव डाली। पर ये फिर 2 अक्टूबर 2023 को हमने मेरठ में जो क्रांति धरा है, आपको पता है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से शुरू हुआ था। तो वहाँ एक मजाक की छोटी सी बात कर लूँ मैं, वहाँ बिला वजह ही आदमी लड़ने लगता है, तो वजह से तो लड़ेगा। तो ये वजह हमने शुरू की 2 अक्टूबर 2000, मतलब लगभग 1.25 साल पहले, है ना। और उसमें 11 राज्यों की 41 पार्टियां जुड़ी हमारे भारत गठबंधन से, और उसके बाद धीरे धीरे फैलता रहा। उसके बाद 2 अक्टूबर के बाद 14 अक्टूबर को बलदेव राज जी ने, मैं इनको तारीफ़ करूंगा कि बहुत ही अच्छे और सच्चे आदमी हैं, इन्होंने हरियाणा स्टेट गेस्ट हाउस में कार्यक्रम रखा और मुझे उसमें चीफ गेस्ट बनाया। उसमें 8 पार्टी और 12 संगठन जुड़े थे। पर चूंकि ये पार्टियों का गठबंधन है, भारत गठबंधन, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी बता दूं मैं आपको, सिर्फ नाम भारत का मतलब तो आप जानते ही होंगे, भा का मतलब है ज्ञान, प्रकाश, सूर्य, रथ का मतलब जिसमें कंटिन्यूटी हो, और वर्ष का मतलब होता है पानी से घिरा हुआ एक भूखंड। तो जहाँ का हर व्यक्ति ज्ञानरत रहता था, और कोई भी ज्ञानी होगा वो हमेशा कर्म में लगा रहेगा। और इसकी इंग्लिश में एक्सपेंडेड फॉर्म है बिनेवलेंट ह्यूमैनिटेरियन अलायंस फॉर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। बिनेवलेंट का मतलब आप जानते ही होंगे, परोपकारी। आज जो है हमारे जितनी भी राजनीति है परोपकार से दूर ही है और भिखारी बना दिया है। परोपकार का होना अलग मतलब है और भिखारी बनाना अलग मतलब। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब है मानवीय दृष्टिकोण हो। तो मानवीय दृष्टिकोण में आप जो मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है, पुअर क्लास है, आप उसके लिए प्रोग्राम्स ज़्यादा बनाएंगे, ना कि कॉरपोरेट्स के लिए। और कॉरपोरेट्स भी परेशान हैं। हम तो चाहते हैं जितने कॉरपोरेट बड़े हैं इससे भी 10 गुने बड़े हो जाएं, पूरी दुनिया उसमें अपना सामान भेजें। पर आज कॉरपोरेट क्यों परेशान है? क्योंकि उससे मनी एक्सट्रैक्ट की जा रही है। जैसे एयरटेल का ले लो आप, 50 करोड़ रुपया इससे डोनेशन लिया, पता होगा, आपने खूब वीडियोस देखे होंगे आपने। जब 50 करोड़ आप किसी से एक्सट्रैक्ट करेंगे मनी, तो वो 500 करोड़ कमाएगा या 250 करोड़ कमाएगा, कई गुना कमाएगा। तो हमारे कॉरपोरेट भी परेशान है। उन लोगों का भी कहना है कि हमसे ये जो चंदा लेना है ये बंद किया जाए, तो हम और अच्छा काम करेंगे, है ना। क्योंकि जो व्यापार से ही तो सारा देश चल रहा है, सारी दुनिया चल रही है। कि दूसरी आपके किसानों को भी ये कॉरपोरेट्स जो है, जो घटिया कॉरपोरेट्स हैं, जैसे अडानी, आपकी सारी संपत्ति, किसानों की संपत्ति वो हड़प करना चाह रहा था, और उसके पीछे है नरेंद्र मोदी। भाई हम ये किसान, अगर जैसे आपके शंभू बॉर्डर पे पड़े हैं, कितना समय हो गया, ऐसी सिंघू बॉर्डर हरियाणा वाला, और ये बेचारे इन्होंने ही बचा लिया है देश को, किसानों को साधुवाद, और नहीं तो ये सारी संपत्ति किसानों की अडानी को चली जाती। बहरहाल मैं फिर से वापस आता हूँ, हमारा जो भारत गठबंधन की पार्टियाँ हैं, सिर्फ वही पार्टी जुड़ रही हैं जो ऑनेस्टी पसंद है, और वो चाहती हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और रोज़गार। ये 4 प्रमुख हमारे स्तंभ हैं। लोकतंत्र के स्तंभ बताते हैं ना आप, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, साथ में प्रेस। पर हमारा ये कहना है, प्रेस तो सारे में है ही, प्रेस तो ज़रूरी है, बिना उसके कुछ नहीं होगा। पर जो पिलर है, आपको स्वास्थ्य अगर नहीं मिला तो बेकार है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और रोज़गार। आज रोज़गार सबको मिल जाए तो क्यों बर्बादी हो देश की। धन्यवाद, मुझे इतना ही कहना है, बाकी आप लोग